ये सभी का रूट कॉज इज ओनली मिसैंड्री. इन सिंपल टर्म्स, राइट, मिसैंड्री इज हेट टुवर्ड्स मैन. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ अभी. नाउ हाउ इट हैज इम्प्लीमेंटेड, इट्स लाइक सिमिलर टू हाउ पेस्टिसाइड्स affect the soil quality and water pollution होता है. It started with first criminal laws. Because of misandry, criminal laws को इतना bias कर दिया कि the only men are the ones who get convicted. When was the last time you ever heard that a woman was convicted in a murder case? We have a case. So since independence, I have not heard even one single woman who has been hanged to death. While you would have heard for similar set of crime, but for men it would be there. Second one, in civil laws also there is a bias against men. Whether it's maintenance, whether it's property, all coming from male hatred only. इसका impact ऐसे हो रहा है कि because of this male hatred, it's now entering every other domain. आप education का बात कर लीजिए, health का बात कर लीजिए. In education, men do not get a, neither they get a priority, they don't even get a representation. आप कहीं पे भी जाओ, हमने एक सर्वे कराया था with Mumbai University. In terms of how many students, male and female, who passed from in 10th standard, how many went ahead? Like 11th standard में कितने गए? There was a 60% drop in boy child, which means अगर 100 लड़के लोगों ने 10वीं दी थी तो सिर्फ 40 लोग ऊपर गए थे, और अगर 100 लड़कियों ने दी थी तो 100 के 100 लड़कियां आगे गई थी. This drop is quite evident. ये कहाँ से आ रहा है? Male hatred से. Because now the expectation is कि boy child should go ahead and work and earn for the family. आप health में देख लीजिए. Everyone will speak about women's health. Men's health is completely ignored. We go and speak for breast cancer, while it's not even a leading cause of cancer. The leading cause of cancer in most of the genders is prostate. It has higher number of impacted people, but prostate के बारे में कोई बात नहीं करेगा. No funding, nothing. If you go to the next one, right, adoption laws में कितना problem हो रहा है? In adoption laws, literally today, a single man cannot adopt a child unless he is married. He can, and the couple cannot have the child. They can't do it. Latest surrogacy law was passed last year. Sorry, not last year, couple of years back. Till couple of years back, surrogacy law में at least man was able to get a surrogate baby. Now it has been amended to make that a man cannot have a surrogate baby unless the woman is related to him or unless he is married. So this has a significant impact on how the people work. What we want is the male hatred and the misandry should stop. Otherwise, these laws will keep on coming, and then we will be only in the position to try and recover from that. Hello, I'm Sumedha here from Purvotara, Karnataka. I'll try and speak in English and kind of go into Hindi. Just bear with me. Adding to whatever every other panelist mentioned here, I would like to point out a few other things. Obviously, having a helpline going on for 10 years has a lot of data inputs which comes in to see how the society is evolving. It gives us a very big window into how people are thinking and how they are experiencing the changes in laws basically. What we've seen interacting with folks calling into the helpline or even engaging with college students tells us that most of the guys who are right now coming in from high school or even going into colleges for higher studies are kind of not interested in marriage itself. The reason being they know what their family or their own neighborhood is going through. They are not interested in engaging in any relationship either. So the impact which comes in is definitely long term. We are right now in a firefighting mode, but I don't think we are looking at it from a holistic society angle per se. What would happen in 10 years or even 15 years per se, where the institution of marriage itself maybe could be considered as obsolete or not required, and that could be the topic of our discussion later. What I'm trying to point out is there's an angle which we are missing here to consider a man's point of view. We are overwhelmingly thinking from a woman's angle without even considering a man's point of view. If a college going kid is able to evaluate why you even need to get married because the laws are so biased, that tells you that we are really entering into a warning zone which has gone beyond anybody's expectations or even the limits of how we should be considering how the laws should work. Even in a scenario where a man is abused, obviously he's not considered as abused man from a victim point of view. There are scenarios where he has everything, he's bought a house for his family. If a wife is abusing him, he has to walk out of his own home. Even if his wife is sexually abusing him, he has no recourse.
So and then the narrative has been built considering what, taking away from what Amit mentioned on marital rape. Those provisions to even consider a man being raped are seen as alien to this conversation. And that should not be the case. We should really consider opening up the conversation, saying how a man can be raped, so that that kind of normalizes those conversations to then make the law changes happen. General well-being of a man is something which I think Avinash mentioned, but I would like to point out a few other things there. Even considering mental health issues of men is something which we have extensively worked in Bangalore in Karnataka chapter. The response we're getting is pretty good because it's not been heard. The first thing they come and tell us is, we know we were going through it. I'm surprised that so many other guys are also going through it. We know the data which is coming in saying hundreds of calls which comes in on a regular basis. There's mental health issues because of abuse they have gone through for decades. For us to even address it, we need to recognize the issues we face in the society which men specifically face. Health being prostate is one example, but the funding aspect which Avinash mentioned, I would like to add that the reason why there's less funding is because prostate cancer is happening in older men. The reason why there is breast cancer awareness happening because that happens in a younger age for women. So there's a push for, so we kind of discarding men because they are going, well, you see prostate cancer happening around 60 plus or 55 plus, and they're not contributing to society in terms of earning capacity, and then you're also finding yourself not being able to take care of yourself. The imbalance is huge. I think there's a definite requirement for us to consider the imbalance and then address it as quickly as we can. Thank you. Welcome you all. The press is the main source of information spreading. Whatever we are doing here, it will inside this hall only. लेकिन जब मीडिया कोई बात करता है, उसकी लिमिट स्काई होती है. तो ये जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, इसका जो भी निचोड़ पूरे देश में, पूरे समाज में और पूरे विश्व में भी जा सकता है. तो अब हम जो बात कर रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा टॉपिक हमारे रुचि ने रखा है, मेंटेलिटी. मेंटेलिटी इज कोर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. हमारी जैसी सोच होती है वैसा बिहेव करता है. अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें कि हमारा कोई मित्र है, जब हम उससे मिलते हैं बहुत अच्छे से दौड़ के उससे गले मिलेंगे, और अगर मुझे लगा कि इसके प्रति हमारी सोच खराब है, दूर से देखेंगे तो हमारे में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और हो सकता है कि हम उससे दूर भाग जाएं या उल्टी सीधी बातें हैं. तो सोच हमारे जो मनुष्य है उसको ट्यून करती है. अब आगे चलते हैं. ये जो हमारा मनुष्य है ये सामाजिक प्राणी है. सामाजिक प्राणी का मतलब उसने समाज का गठन किया. अदरवाइज देखेंगे तो जानवरों में भी समाज कुछ के होते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन ये जो मनुष्य है ये एक सामाजिक प्राणी है. इसने समाज की संरचना करी है. इस समाज की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विवाह, शादी, मैरिज. और आज जो मैरिटल रेप जैसा कानून लाने का प्रयास हो रहा है कुछ लोगों द्वारा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो नहीं पता, लेकिन ये मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार जिसे कहा जाता है, मेरा कहना है कि ये विवाह का बलात्कार कर रहा है. विवाह सबसे पवित्र संबंध है, संस्कार है. सभी धर्मों की मैंने स्टडी करी और ये देखा गया कि विवाह से पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता, और सभी धर्मों ने इसे बचाए रखने के लिए अपने अपने तरीके के उपाय किए हैं. हिंदू धर्म में तो कहा गया आपने एक बार विवाह कर लिया, ये 7 जन्म का बंधन है, अब आप इसे तोड़ ही नहीं सकते. मुस्लिम में बोला गया अगर ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको लग रहा है नहीं चल पा रहा है तो तलाक ले लो. लेकिन इतना आसान वहां भी नहीं है. अब इस पे डिबेट में नहीं जाऊंगा, बहुत डिबेट. हमने सिख धर्म में भी देखा, वहां भी बोला आनंद कारक जिसको बोला गया कि आनंद की उत्पत्ति की. अब ये क्यों है, इसको छोटा सा समझते हैं. हम सब अपना जो जीवन जीते छोटे से बच्चे से पैदा होते हैं, फिर अपना एक जीवन चक्र पूरा करते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं. इसी सब चीजों के लिए ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये एक अच्छा नागरिक कैसे बने, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए. तो समाज ने ये गठन किया कि जो इस बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, यानी उसके माँ और बाप, उन पे ही ये जिम्मेदारी डाली जाए कि ये बच्चा जो है
एक अच्छा सा सभ्य नागरिक बने, ना कि जानवरों की तरह अपने व्यवहार में जिए। और आप सब, हम लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों के माँ बाप का, उनका प्यार का जो योगदान है, जो त्याग है, उसकी वजह से आज हम लोग इस सभ्य नागरिक की तरह से इस देश की में काम कर रहे हैं। आप कोई अपने अपनी फील्ड में काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी है विवाह संस्था को बचाना, और उस पर अगर कोई भी अटैक आएगा तो उसका विरोध करना जरूरी। उसमें आप विरोध भी करिए, दूसरों से भी डिबेट भी करिए, लेकिन मनमाने तरीके से लाके ना थोप दिया जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है, देश में एक मानसिकता बना ली गई है। ये बता दिया गया कि पुरुष प्रधान देश था, पुरुष प्रधानता है यहाँ पे, और सारे के सारे पुरुष अत्याचारी हैं और सारी महिलाएं बेचारी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रीड में देखेंगे तो सारे के सारे पुरुष जो हैं वो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये पुरुषों ने ही जो पुरुष प्रधानता ली, प्रधानता मतलब जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे भी कुछ होता है, हमारा जो प्रधान है, जैसे एग्जाम्पल हम प्रधानमंत्री ले लें, तो देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम घर में अगर लेते हैं तो प्रधान जो भी है ज्यादातर पुरुष ही है। अभी सरकार ने महिलाओं को प्रधानता देने की कोशिश की है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन वही जिम्मेदारी है। अभी जैसे कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी हमारे रोहित जी ने उठाई है। ये कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना। जो उठाता है वही जानता है, लेकिन उसको गाली के रूप में आज इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। ये मानसिकता हमें तोड़नी होगी, लेकिन मानसिकता ऐसे नहीं टूटेगी। मानसिकता तोड़ने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, डिबेट करनी पड़ेगी, 1-to-1 फेस करना पड़ेगा, और जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनमें अगर कहीं पे जरूरत है सुधार लाना पड़ेगा। मानसिकता का मैं सबसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। जैसे कि अमित जी ने बोला, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा रेप का आरोप लगा दिया जाए, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई कानून है देश में, कानून अपना देखेगा, लेकिन समाज की मानसिकता क्या है? अगर किसी के ऊपर आरोप लग गया, समाज उसको उसी नजर से देखने लगता है। आप छोटी सी कल्पना करिए, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है, उसके बाद अगर उसके पड़ोस में जो रहते हैं वो अपनी बच्ची को खींच के अंदर ले जाए, अरे हट जा, ये तो रेपिस्ट जा रहा है, कानून क्या करेगा वो नहीं पता। वो व्यक्ति उसी जगह से मरना शुरू कर देता है कि कानून जब निर्णय देगा नहीं देगा क्या आएगा, लेकिन समाज उसको उसी तरीके से देखने लगता है। इसको और समझ सकते हैं कि कोई भी आपके ऊपर आरोप लगता है, कोर्ट तुरंत उसको जेल भेज देती है, और ये कहा जाता है कि ये जेल नहीं है, ये जुडिशियल कस्टडी है। कानून की भाषा में उसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। लेकिन समाज में, जिस समाज में रहते हैं, वो क्या कहता है? अगर आप जेल चले गए, हर व्यक्ति कहता है कुछ तो होगा, जरूर कुछ किया होगा, वरना ऐसे ही जेल ना भेज दिया जाता। ये कुछ तो होगा, ये छोटा सा शब्द है, वो इतना खतरनाक है, इसके सफाई देते देते वो इंसान खत्म हो जाता है। उनकी मानसिक दशा इतनी दुर्दशा में बदल जाती है कि बहुत सारे लोग सुसाइड सिर्फ इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ तो होगा कि जवाब उनके पास नहीं होता है। लोगों को ये समझा नहीं पाता है कि कानून जो काम कर रहा है उसमें कहीं खामियां हैं, और बहुत ज्यादा खामियां हैं। तो ये चीजें हैं, हमें मानसिकता बदलनी है, और इस मानसिकता के सहारे ये इंसान जो है अच्छे से रह पाएगा। मेरा लास्ट में छोटा सा कहना है, स्त्री और पुरुष जो है, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें प्रतिद्वंदी ना बनाया जाए। अगर आप इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना देंगे, जैसा कि आज के कानूनों में हो रहा है, जेंडर बायसनेस इतनी आ गई है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह खड़े हो रहे हैं, तो ये देश समाज परिवार नहीं चल पाएंगे। तो मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, डोंट मेक इट देम कॉम्पिटिटर। एक दूसरे के पूरक हैं, इनको प्रतिद्वंदी ना बनाया जाए। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके खत्म करता हूँ। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला कि बसों में किराया फ्री पुरुषों को देना है। अब इससे क्या जेंडर बायसनेस नहीं फैलेगी? एग्जांपल ले लीजिए, एक महिला अच्छी सी नौकरी करती है, उसके हैंडसम सैलरी है, लेकिन वो जाएगी तो फ्री में जाएगी। उसी के अगेंस्ट में एक गरीब आदमी है, लेकिन उसको किराया देना पड़ेगा। तो मानसिकता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसे सिस्टम, ऐसी समस्या ना बनाई जाए
जिससे कि लोगों की मानसिकता खराब हो। और एट लास्ट बोलूँगा, ये जो हमारा समाज चलता है ये कानून से चलता है। हम चाहें या ना चाहें, देश का जो भी कानून है, लैंड ऑफ लॉ, हमें मानना ही मानना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। हाँ, अगर बन गया है आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें सुधार नहीं हुआ है तब तक आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे कानून ना बने जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैले, जेंडर बायसनेस फैले और एक दूसरे के प्रति मानसिकता खराब हो और उसकी वजह से सोल्यूशन ना मिलने की वजह से लोग सुसाइड करने लगे। इन सब चीज़ों को बचाना है, यही हम सबकी आप लोगों से अपील है। आप लोग मीडिया हैं, मीडिया का मतलब देश दुनिया की आवाज़ है। आप जो आवाज़ निकालिए वो सारी दुनिया में जाती, इसका इज द लिमिट। थैंक यू। तो आपके कुछ सवाल हो तो हम आपके सवालों का हम जवाब देते हैं। सर, मैं एक्चुअली मेरे माइंड में काफ़ी देर से चल रहा है, आई वेरी स्ट्रांगली सपोर्ट इक्वालिटी फॉर ऑल, बट मेन को बाय बर्थ जो डिफ़ॉल्ट प्रिविलेजेस मिलते हैं हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बिटर फैक्ट्स हैं जो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जेंडर बायस्ड, आई हैव मोर प्रोफेशनली मोर मेन इन माई लाइफ देन फीमेल्स। फीमेल्स के साथ एक पर्सनल कनेक्ट है, बट आई कम्प्लीटली एम्पथाइज विद माई मेल एक्वेंटेंसेज एंड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। बट जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस या डिफ़ॉल्ट बेनिफिट्स मिलते हैं बाय टू ऑल द मैन ऑन दिस प्लैनेट एंड इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ मैडम, आप प्रिविलेज उसको देख रही हैं, इसमें दोनों चीज़ें हैं। वुमेन को भी बहुत प्रिविलेज मिलते हैं, जब भी घर में बेटी होती है ना उसको एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, और जो प्रिविलेज लड़के को मिलते हैं ना उसको जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। आप ऐसे समझिए कि एक घर में लड़का और लड़की हैं, लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, ठीक है, वहाँ पर उसकी जिम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन जो लड़का है उसको अपने माँ बाप को, बाकी भाइयों को, बहनों को, सबको सपोर्ट भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी से समाज एक अच्छा बना हुआ है, इसमें गंदगी ना फैलाई जाए। दोनों के अपने प्रिविलेज हैं, अपने राइट्स हैं, अगर कहीं पे कुछ है उसमें जरूर सुधार करें, लेकिन एक माइंडसेट ना बना दिया जाए कि ये पुरुष है, प्रधानता मिली, प्रेसिडेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी जाए। तो एब्सोल्युटली फर्स्ट थिंग राइट, देयर इज नथिंग लाइक अ मेल प्रिविलेज। ये ना हम लोग को एक मिथ क्रिएट किया गया है कि बच्चों को, लड़कों को पैदा हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। देयर आर वाइड एग्जांपल्स, हमारे खुद के घर में ले लो, आपके पास एक लड़की है और आपके पास लड़का, लड़की को आप ज़्यादा पालन पोषण भी करोगे, यू टेक केयर मोर ऑफ हर। लड़के को तो लिटरली 1-1.5 साल के बाद राइट, अगर चलना ना लगे तो आप मारना शुरू करोगे, वाई इज नॉट वॉकिंग, आप लड़की के साथ वो नहीं करोगे। अगर 2 साल के बाद वो रोना शुरू करे तो यू विल स्टार्ट सेइंग बॉयज डोंट क्राई, अपनी अपनी भाषा में बात करना स्टार्ट करोगे। सो एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग टू से दैट देयर इज अ प्रिविलेज। ओके, whatever has been said, probably it was true 50 years back or 200 years back, but that's not true anymore. And second thing, as YPC Judge said, right, boys को at some point of time, after 5 years of age, at least in majority of the families which we have, they would be expected to start contributing economically. आप villages की तरफ जाओ, 5 साल से लोग खेतों में जाना start कर देते हो, they will do a similar job, but you will never see a girl doing that. Go to hotels, show me a girl working over there. There will be only boys working over there. There is nothing like a male privilege. This is a myth being put across everywhere. 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैम 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, भाई रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है, और बहनों की या महिलाओं की रक्षा में पुरुषों ने हमेशा जान दी है। So honestly, I've lived an exactly opposite life when I have tried to be a male figure. So I'm targeted or I'm labeled as an alpha female. So frankly, society change हो रही है, alpha male, alpha female and masculine, feminine, you know, divine masculine, divine feminine. बहुत सारी चीज़ें हैं in different domains, including astrology, which I read a lot. बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अपग्रेडेशन चेंजेस आ रही हैं, things are getting much better. There are a lot of equal, you know, equality thought process वाले male females हैं सोसाइटी में. So I guess you are right from your standpoint, completely agreeable. As long as women don't misuse the rights they have in the law, it is completely justified. Thank you. एक जैसे आपने कहा कि आरोप लगते हैं, जिस पर आरोप लग गया हम उसको आरोपी नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन जिस पर कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि ये आरोपी है उसको सजा भी दे दी,
तो उसके बारे में क्या आपकी संस्था स्टैंड लेगी कि उसको बेल या उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए जो दे दी जाती है, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट द्वारा दी गई है, और उसको फिर भी किसी न किसी तरीके से पैरोल मिलती है, तो क्या आपकी संस्था उसके विरोध में भी खड़ी होगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो हम एज मेंबर ऑफ सोसाइटी हम वहाँ पे जज नहीं हम वहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठे। हमारे पास कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो हमारे पास मदद के लिए आता है कि मेरे पर आरोप लगा हुआ है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अब आप देखिए, अजमल कसाब के ऊपर भी आरोप लगा था, ठीक है, और सारी दुनिया को पता था कि उसने 200 लोगों को मारा है, बट उसको बड़े से बड़ा वकील मुहैया कराया गया। एक आरोपी के भी राइट्स होते हैं। आरोपी वाकई ही वो ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ है कि नहीं, वाकई उसने वो क्राइम किया है कि नहीं, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट द जजेस। हमारा काम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल्स हैं जो कहते हैं कि अ मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी, एंड वी से दैट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट। तो जैसे ही आदमी, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम आदमी को गिल्टी करार कर देते हैं आरोप लगने पे ही, और उसकी उसकी जो जर्नी है कोर्ट की वो ऐसे हो जाती है जो कि कन्विक्ट से भी बुरी होती है। कभी कभी सजा से ज्यादा पेनफुल होता है वो वाला जो उसकी जर्नी होती है अपने आप को सही साबित करने की, वो सजा से भी ज्यादा पेनफुल होती है। तो हमारा ये कहना है कि एक आदमी को आप पहले ही, जो एक आरोपी है, आप उसको जज करके आप उसको ये ना कहें कि ये क्रिमिनल है, ही इज द रॉन्ग डूअर, या इसने वो क्राइम किया ही है। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट विल टेक द ड्यू प्रोसेस। और आपने जैसे कहा, मैं अब आपके उस पर आऊंगा कि अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट कर देता है तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हायरार्की है। अगर लोअर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करता है तो बहुत सारे रॉन्ग कन्विक्शंस भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, स्पेशली अभी पिछले साल तक, जब तक ये नए कानून नहीं आए थे 1 जुलाई से पहले तक, आपने बहुत सारे रेप के केसेस सुने होंगे ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जहां पर क्या होता था कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, वो आपसी मर्जी से, दोनों एडल्ट्स हैं, आपसी मर्जी से उनका रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है, लेकिन किसी वजह से कोई खटास आ जाती है, या फिर अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर लड़की बोले कि आई वांट टू वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती, अब मुझे नहीं लगता कि हमें, शी वॉक्स आउट, शी डम्प्स द मैन। आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई आप कोई भी रिलेशनशिप बंदूक पे तो नहीं चला सकते, लेकिन अगर यही बात एक आदमी का है कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता हूँ, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है या लव अफेयर है, उसके ऊपर केस कर दिया जाता था रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो एक आपसी मर्जी से, आपसी सहमति से बनाए हुए संबंध को रेप का करार देके, और ऐसे हजारों आदमी जेल में रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी है, और हजारों आदमियों को जो इनोसेंट थे, जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, रेपिस्ट का ठप्पा लग गया है। और जितने रेप के केसेस इंडिया में रिपोर्ट होते थे, मैं 2021-22 तक की बात कर रहा हूं, उसमें से 50% केसेस वो ये केसेस हैं जिसमें आपसी संबंध से बना। और अब ऐसे बहुत से केसेस थे जो ये केसेस में कन्विक्शंस हुए हैं, क्योंकि हमारा कानून उसको मानता है, ऐसे पुरुषों का कन्विक्शन हुआ है, वो जेलों में है, हायरार्की है वो जाके। लेकिन अगर कोई अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, उसका कोई कन्विक्ट करता है, हमारा बस यही कहना है, कानून एक महिला और पुरुष दोनों को बराबर से देखे, चाहे वो एक परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम हो, चाहे उनको सजा देनी है या उन्होंने गलत किया, तो हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जो महिला और पुरुष को एक ही नजरिए से देखें। जहाँ तक पेरोल की बात है, वो एक बहुत ही टेक्निकल और उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है। दैट्स फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। उसमें हमारा कोई ऐसा we don't take a stand on payrolls actually. दुनिया में भी रिलेशन तार वांग ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭੜਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? देखिए, चाहे रेप का केस हो, चाहे Anybody else wants to take it, please? So देखिए, जब भी आरोप लगता है, चाहे वो आपने देखा होगा दहेज के कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, वैसे ही रेप के कानून का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जब ये आरोप लगते हैं तो हमारा ये स्टैंड होता है कि अगर किसी ने दहेज मांगा है तो आप उसको कन्विक्ट करिए ना। आगे आप दहेज का केस लगा देते हैं या रेप का केस लगा देते हैं और उसके बाद जब आदमी को जेल हो जाती है, आदमी जेल में चला जाता है, तब उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं कि आप पैसे दे दो तो हम ये केस वापस ले लेंगे। आप देखेंगे इस सिस्टम की वजह से हमारे पास इतने केसेस हैं जहां पर एक एक महिला ने 8-8, 10-10 रेप केसेस लगा रखे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, 8-8, 10-10 और क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। उन्होंने ये देख लिया कि रेप का केस लगाओ और 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, करोड़ रुपया ले लो, ठीक है। उसके बाद कोर्ट में जाएगा केस, क्या होगा, लास्ट में पता लगेगा कि आदमी इनोसेंट है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई केस ऐसा आया जहां पे बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कोर्ट ने दी हो कि भाई तूने केस किया था और तेरी वजह से बंदा 5 साल जेल में रहा, अब तुम भी 5 साल जेल में रहो। ऐसा एक ऐसी जजमेंट आई थी कुछ समय पहले। अदरवाइज कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे देश में कि किसी ने किसी पे झूठा केस लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बंदे की जिंदगी के साथ उसके परिवार की जिंदगी होती है। और हमारे पास केसेस हैं जहां पर लोग 14-14 साल, 20-20 साल जेलों में रहे हैं फॉर अ क्राइम जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। उनका परिवार बर्बाद हो गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और कोर्ट में केस जाता है, उसके बाद कहते हैं कि पैसा देके सेटल कर लो। सो ये एक ब्लैकमेलिंग का जरिया बन गया। अगर मैरिटल रेप का कानून आ जाता है तो यही हमारी आशंका है, जो शादियां नहीं चल रही हैं, जो शादियां फेल हो चुकी हैं, उसमें पैसे की उगाही की तरह उसको यूज किया जाएगा। मैरिटल रेप लगाओ और पैसा लो और केस सेटल कर दो। अगर आदमी ने गलत किया तो आप उसको सजा दीजिए ना। आप बाहर जाके करोड़ों रुपया लेके केस सेटल कर रहे हैं, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल। ज्यादा से ज्यादा केसेस यही हैं, तभी जो हमारे दहेज कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको लीगल टेररिज्म। क्यों बोला लीगल टेररिज्म? क्योंकि आप लीगली आप उनसे टेरराइज करके पैसा निकाल रहे हैं। इस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है जो कि हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और वो हम नहीं चाहते। इसी पे लीगल टेररिज्म वाले पे सुशील कुमार शर्मा का केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म क्यों बोला है, उन्होंने बोला कि पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं होता है, सिर्फ मात्र आरोप लगा देते हैं और ट्रायल शुरू कर लो। उस केस में भी यही हुआ था कि ट्रायल करा लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी लीगल टेररिज्म जिसमें वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा झूठे मुकदमे से अगर कोई बरी भी हो जाता है, वो जिस प्रोसेस से गुजरता है ना, वो उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी दुश्वारियां होती हैं, उससे उभर नहीं पाता है। तो हर मुकदमे का ट्रायल जरूरी नहीं है। आप इनिशियल लेवल पे भी चेक एंड बैलेंस करो। उन बहुत हार्ड शब्द यूज किए थे उसमें, लेकिन कहीं भी फॉलो नहीं होता है। एक माइंडसेट बना दिया है, इसी मेंटालिटी को तोड़ना है। कानून अपना कानूनी तरीके से काम करे और हमारा ये होता है कि उसको यही बताना है कि जो अथॉरिटीज है, सर आप इसी जगह पे गलत कर रहे हैं, ये प्रोसेस कानून में आप इसको अडॉप्ट करिए। और जो एक्यूज होता है उसको ये बोलते हैं कि ये स्टेप्स हैं, इसके हिसाब से चलो और तुम्हारे ऊपर जो हो रहा है ये मानते गलत हो रहा है, लेकिन हिम्मत रखो, सही ढंग से चलो, बुरे दिन निकल जाएंगे, सुसाइड मत करो। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक मैटर आया था। उसमें एक महिला ने क्या किया कि अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का उसने केस किया। उसने पहले कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को दी, जींद में, हरियाणा का मैटर था। तो वो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई ये केस बनता नहीं है। तो वो सीधे सीढ़ी दर सीढ़ी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आ गई। तो जस्टिस हरप्रीत बरार जी के पास वो मैटर लगा था, 4 दिन पहले की जजमेंट है। तो जब उन्होंने सारे जो है मैटर को खंगाला जज साहब ने, तो उन्होंने देखा कि उस महिला ने अकेली जींद में 19 लोगों के ऊपर जो है सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के जो है वो केस लगा रखे हैं। तो उन्होंने डीजीपी हरियाणा को जो इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप इस मामले की या ऐसे रिलेटेड जितने भी मामले हैं
आप उसको अच्छी तरीके से उसके ऊपर संज्ञान लीजिए और कार्रवाई कीजिए। मतलब हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हम सरकारी आंकड़े ही देखें, चाहे वो दहेज के आंकड़े हों या रेप के आंकड़े हों, तो उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो कहीं कानूनों में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से, क्योंकि अगर कोई कानून बना है उसके ऊपर सरकारी तंत्र मंत्र में इतना खर्चा होता है, इन्वेस्टिगेशन है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा होता है और उसके रिजल्ट्स क्या है। अगर हम दहेज कानून की बात करें तो 80% इक्विटल है, अगर हम रेप कानून की बात करें 70% इक्विटल है। तो इसका मतलब कहीं कानूनों में खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अब जैसे दुरुपयोग है, अगर दुरुपयोग का कहीं स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का कहीं उसमें प्रावधान होगा तो कानूनों में जो है उसकी ऑटोमेटिकली उसमें जो है कि कानूनों की मरम्मत होती रहेगी, पर सरकारों की उस तरफ सोच नहीं है। ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। मुझे पूरा समझ में नहीं आया क्वेश्चन, बट मैं इनका मिसयूज का पॉइंट पे एडिंग टू इट। कर्नाटका में एक इंस्टाग्राम में एक रील बहुत वायरल हुआ था, मोस्ट पीपल माइट हैव सीन इट, आपने देखा होगा। एक केस था वेयर बीवी ने 498 और मेंटेनेंस केसेस दोनों डाले। तो उस बेल देने या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल मालूम पड़ा कि 6 हस्बैंड्स, 7वीं शादी है और पिछले 6 शादियों में डाउरी एंड 125 और मेंटेनेंस केसेस लगाए। सबका सेटलमेंट होके 7th में आया, 7th केस। तो उसका रील और उसका वीडियो बिकेम वायरल ऑल ऑफ अ सडन। तो उस 7वें हस्बैंड को ही हैड टू डू उसको रिसर्च करना पड़ा कि अच्छा पिछले 6 केसेस कौन कौन है। उसके बाद उसको पुटअप करना पड़ा कि देखो ये हिस्टोरिकली इतनी बार वो केसेस डाल रही है, उसको प्रूव करने के लिए ही हैड टू डू द वर्क, उसको काम करना पड़ा उसको। तो अगर ये पहली बार में स्टॉप हो जाता है तो कितने लोगों की जान बच सकती है केसेस के हवाले। तो वो दैट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है। कंप्लेंट देते ही एफआईआर हो जाना और विदाउट डूइंग इन्वेस्टिगेशन और क्लोज करने की प्रोसेस यूज नहीं करना, उसका भी इम्पैक्ट है, वो भी समझना चाहिए। इसमें पॉइंट सर आपने जिस हाई कोर्ट की जजमेंट की आपने बात की, सर हाई कोर्ट की जो जजमेंट की आपने बात की चीज वाले की, क्या वो ट्रायल कोर्ट में नहीं चेक हो सकती थी कि 20 ऑलरेडी लैंड रोड के ऊपर रेप के केसेस हैं? जो चीज हाई कोर्ट ने देखी, क्या वो कोर्ट में भी कुछ कमी है? सर देखिए, मैंने आपको यही बताया कि ये जो कमियां हैं ये हमारे को नीचे से ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक कंप्लेंट आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारी पुलिस अथॉरिटी है। वो किसी भी मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। अगर मामला पुलिस के लेवल पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट हो जाए, प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो जो हमारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो कुछ और ही बोलेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिस चीज की सही तरीके से नहीं होती, जैसे ही कंप्लेंट आई, कंप्लेंट का संज्ञान लिया, एफआईआर कर दी, उसको जो है सही तरीके से, जैसे किसी नेबर के पास आप जाइए या उससे रिलेटेड जो लोग जुड़े हैं उससे आप पूछिए कि भी वाकई वो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ। पुलिस ये सब करती नहीं है। मैजिस्ट्रेट क्या बोली, अगर आप समझिए, अगर हम मैजिस्ट्रेट के पास भी कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट भी ऑटोमेटिकली पुलिस को ही बोलती है कि आप इस चीज का संज्ञान लीजिए या आप इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। वो इंक्वायरी तो होती नहीं है। इंक्वायरी के नाम पे बस वो कागज काले किए जाते हैं, आपका बयान लिया जाता है, उसका बयान लिए जाते हैं, जो है कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये बात जब हाई कोर्ट तक पहुंची, जब उन्होंने इस मैटर को थॉरली देखा या जो लोग वहां पे पहुंचे इस चीज को लेके, तब वो हाई कोर्ट के संज्ञान में आया कि भी वाकई इसके अंदर कितनी त्रुटियां हैं। तो अब वो मैजिस्ट्रेट के लेवल पे ये चीजें कौन देखेगा? पुलिस देखेगी। पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करती। इसकी हाइट में आपको बताऊं कि डावरी डेथ के मेरे पास अनगिनत इतने केसेस हैं जिसमें कि वाइफ की डेथ ही नहीं हुई है और उनके ऊपर मुकदमा चला, सजा तक हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन का हमारा हाल है। और जो मजिस्ट्रेट है ये बहुत की प्लेस होती है, जिसको कि ऐसे मैकेनिकली निकाल दिया था कि उनके पास आज फाइल है, साइन करते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट का रोल यही है कि अगर पुलिस ने सही ढंग से काम नहीं किया तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन कोई कुछ काम नहीं करता। कोर्ट भी क्या करती है कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे ऊपर आरोप आए थे, साबित नहीं हुए, तुमको बरी कर दिया गया।
वो कभी भी ना मजिस्ट्रेट को ना पुलिस को फॉल्स जो इन्वेस्टिगेशन है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया आपने, ठीक है, उन पे कभी कोई ऑर्डर नहीं करती है। लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये क्या चल रहा है? कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, किसी को कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, चला दो, बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया। तो आप सोचिए जिसमें डेथ भी नहीं हुई हो और उसमें पूरे मुकदमे चल रहे, सजा हो रही है। आप एक पासपोर्ट बनवाइए या नौकरी पे आइए तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है कि आपके ऊपर केस है कि नहीं है। अभी जैसे 7-7 मुकदमे चल गए, किसी को पता ही नहीं, 10-10 शादियां कर लो। कहीं तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, लेकिन नहीं काम करते। नहीं काम करने वालों को, दुरुपयोग करने वालों को सजा नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर जिस दिन ये होने लगेगा कि जिसने झूठा मुकदमा लिखा है, जो आइडेंटिफाइड हो गया है, हर एक की बात नहीं कर रहा, जो आइडेंटिफाइड हो गया उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता। आइडेंटिफाई हो जाए उसको, और जो पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको अगर सजा मिलने लगे तो मेरे ख्याल से देश की बहुत सारी समस्या कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। सर, आपकी जो एनजीओ है निचले सिस्टम में काम कर रही है, ऊपर लेवल के सिस्टम में काम कर रही है? जैसे एक मैरिटल ऑफ एक्ट जिसकी ड्राफ्टिंग के अगेंस्ट आप कोर्ट में गए हैं, उसकी क्या ड्राफ्टिंग, मतलब क्या उसके लॉज हैं, तो उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट आप मांग रहे हैं? ये इसको बिल्कुल निरस्त कह रहे हैं। देखिए, अगर आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, तो मैरिटल रेप में देखिए हमारा जो हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट्स हुए थे। हमारे निर्भया का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सारे कानूनों में फेरबदल हुआ था जो रेप से रिलेटेड कानून थे। उसमें क्या था कि रेप की डेफिनेशंस को बहुत वाइड कर दिया गया। जो रेप हम समझते हैं, जो हम लोग आम लोग पिक्चरों में देखते हैं, दैट्स नॉट व्हाट एग्जैक्टली द रेप। उसकी डेफिनेशन बहुत वाइड कर दी है। किसी भी एक्ट को रेप का नाम दिया जा सकता है, बहुत वाइड कर दी। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसमें और ऐसे फेरबदल किए कि अब क्या है कि कोई भी महिला जब जाके वो कह सकती है मेरे साथ 20 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, तो आप उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप 15 साल क्या कर रहे थे, आपने तब क्यों नहीं कंप्लेंट करी। जब आपने देखा होगा मीटू मूवमेंट चला था कुछ समय पहले, इस तरह के केसेस आ रहे थे कि 20 साल पहले उस पर्टिकुलर होटल में मेरे साथ संबंध बनाए गए, मेरा रेप किया गया, 15 साल पहले बनाए गए। तो हमारा कानून ऐसे बनाया गया है, अब चेंज कर दिए गए। आप कभी भी जाके बोल सकते हैं 15 साल पहले मेरे साथ हुआ था या 20 साल, और पुलिस को वो लेनी पड़ेगी। हम अभी बात कर रहे थे कि नीचे लेवल में अगर पुलिस वाला उस कंप्लेंट को नहीं लेता तो सस्पेंशन हो जाएगी पुलिस वाले की। उनको पता होते हुए कि ये झूठा केस है, दे हैव टू टेक द कंप्लेंट। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन, अगर इंटॉक्सिकेटेड है मतलब अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है अगर महिला ने, और उसके बाद संबंध बनाए जाते हैं, उसको रेप माना जाएगा, बिकॉज वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं थी। तो हमारे जो रेप के कानून इंडिया में हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कड़े कानून हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे कानून है कि अगर किसी ने एक्चुअली क्राइम किया तो वो बच नहीं सकता, बल्कि ऐसा कानून है कि बहुत सारे इनोसेंट भी फंस सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर चीज पे, इसमें एक्सेप्शन 2 है 375 में, जिसमें ये सारा जो इल्जाम है, ये जो रेप के इल्जाम है, पति के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। मतलब महिला किसी पे भी लगा सकती है, हस्बैंड के उससे दूर रखा गया था कि आप हस्बैंड के ऊपर रेप का नहीं लगा सकते। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498A है, 377 भी तब था। ये सारे आप देखते हैं कि जब एक मैरिज नहीं चल रही, सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है रेप का केस हस्बैंड पे नहीं लगा सकती। फादर इन लॉ पे हमने देखा है रेप का केस लग रहा है, देवरों पे लग रहा है, जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए रेप के केस हस्बैंड पे नहीं लग सकता। अब जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है, आप इस एक्सेप्शन को हटा दीजिए। अब अगर एक्सेप्शन को हटा देते हैं, आज फर्ज करिए एक्सेप्शन हट गया, कल जब मैरिज में डिस्प्यूट होगा तो कोई दहेज का केस नहीं लगाएगा, क्योंकि सबको पता है वो सीधा लगाएगा मैरिटल रेप। वो पत्नी जाएगी कहेगी मेरा 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, या पूरी लाइफ जो मेरी मैरिड लाइफ रही है, मेरा बहुत समय ऐसा था, मेरा कंसेंट नहीं था और संबंध बनाए गए, इसको रेप माना जाएगा। पति और पत्नी किसी पार्टी में गए, दोनों ने अल्कोहल कंज्यूम करी, वो वापस आए और दोनों ने अपनी रजामंदी से संबंध बनाए, पति पत्नी है। पत्नी जाके कहेगी मैंने तो अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी, टेक्निकली वो रेप हो जाएगा। वो कानून ये बन रहा है, किसी को पता ही नहीं है सोसाइटी में कि क्या कानून बन रहा है। और आप अगर इस तरह का ड्रैकोनियन,
ये जो रेप के कानून बनाए गए थे वो ये सोच के बनाए गए थे कि जो परपेट्रेटर है, जो क्राइम कर रहा है, वो कोई थर्ड पर्सन है। पति को सोच के और एक घर को सोच के वो कानून नहीं बनाया गया था। आप सडनली उस कानून को लागू कर देंगे एक घर की चारदीवारी को और एक मैरिज में, और वो कानून बनाया गया था कुछ और सोच के साथ आप उसको पति के ऊपर लागू कर देंगे, तो ये सारा उसका तो वो अगले दिन से मिसयूज हो जाएगा। ये चीज के बारे में किसी को मालूम नहीं है। जब परिवार टूटेंगे, इनोसेंट लोग जेलों में जाएंगे। अगर हमारे रेप के कानून में प्रोविजन है जो भी साथ देगा क्राइम में उसको भी रेप के केस में एफआईआर होगी, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब साथ देने में क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जहां पर वाइफ ने हस्बैंड की फैमिली पे केस लगाया और ये कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। इस तरह के केसेस हैं। तो अब अगर ये केस आएंगे मैरिटल रेप के और वो कह देगी कि मेरी मदर इन लॉ ने बाहर से कुंडी लगा दी, मैं एस्केप नहीं कर पाई, या मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी चाय में कुछ मिला दिया। हम ऐसे, आपको शायद अजीब लग रहा हो, हम रोज ऐसे एफआईआर पढ़ते हैं कि जो रेप के एफआईआर हैं प्रोमिसर, उसमें हमेशा ही होता है मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, स्पाइक कर दिया गया मेरे ड्रिंक। अब वो कह देगी कि मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो मेरी ड्रिंक को मेरी चाय में कुछ मिला दिया, मैं बेहोश हो गई और मेरा रेप कर, सिस्टर इन लॉ भी अंदर जाएगी। तो ये सिर्फ मेन की इशू की नहीं है, पूरी फैमिली की है। उसके ऊपर गैंग रेप का केस होगा तो उसके अंदर जो महिलाएं भी हैं वो भी उसके अंदर अभियुक्त हो जाएंगी। तो ये तो पूरा फैमिली सिस्टम को हिला देने वाला कानून है, किसी को मालूम ही नहीं है कानून आने वाला है। कल सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि यहाँ कानून आ रहा है, उसके बाद जब परसों केसेस होने लगेंगे तब लोगों को पता चलेगा अच्छा ये था मैरिटल रेप। हम तो ये कह रहे हैं कि मैरिटल रेप को जितनी भी कंट्रीज के कानून हमने स्टडी किए हैं, यूएसए के कानून स्टडी किए, कनाडा के किए, नेपाल तक के कानूनों को देखा हमने, यूके के कानूनों को देखा है, यूएस के बहुत सारे स्टेट्स के हमने कानून देखे। वहां पे इसको एड्रेस किया जाता है स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस। उनको वहां पे रेप बोला ही नहीं जाता, स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या पार्टनरशिप वायलेंस। क्यों? आप एक जनरेशन की बात कर रहे हो। बच्चे जब बड़े होंगे उनको लोग कहेंगे तेरे बाप के ऊपर तो रेप का केस लगा था, तू एक रेपिस्ट की औलाद है, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द रेप। क्योंकि आप बच्चों पे क्या डाल रहे हैं, अगली जनरेशन पे क्या होगा? जो ये टूटी हुई शादियों में जो बच्चे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? आप जो महिला गुट है वो अपने बात कर रहे हैं कि ये कानून आने चाहिए। हु विल टॉक अबाउट द चिल्ड्रन? उस शादी में जो बच्चे हैं उनको बोला जाएगा तू तो रेप की पैदाइश है। आप क्या समाज बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं? उसको तो मैरिटल रेप ना बोल के उसको एड्रेस होना चाहिए स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस के नाम से। और हम बहुत सारे लॉ मेकर से मिले हैं, लॉ मेकर्स इस चीज को मानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में ये बात उठती है तो जितनी भी वहां पे जो वुमेन जो फेमिनिस्ट लॉबी है वो उसको अपोज करने लग जाती है। और पहले भी फेमिनिस्ट लॉबीज ने ऐसे कानून लेकर आए हैं, आज उनके जब बच्चे हो रहे हैं उनके ऊपर झूठे केसेस हो रहे हैं। निर्भया मूवमेंट में कितने लोगों ने वहां पे जाके मूवमेंट फाइट करी, आज हमारे पास कॉल आते हैं कि मेरे ऊपर फॉल्स केस रेप का केस हो गया। क्योंकि कानूनी आपने कानून प्रोन टू मिसयूज बनाया, आप कानूनी ऐसा बना रहे हैं जिसका मिसयूज होना, इट्स ए रेसिपी फॉर मिसयूज। आप कानून में दूसरी कंट्रीज में जो कानून बनाए हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई झूठा केस कर दे। इतनी औरतें जेल में हैं झूठा केस करने के लिए, यहाँ पे किसी औरत को जेल नहीं होगी, कोई कानून में प्रोविजन नहीं होगा झूठा केस करने का। तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप झूठा केस करिए, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो क्या होगा सोसाइटी में? हम आगे की जनरेशन के लिए क्या सेट कर रहे हैं? दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग। रेप कानून पे मैं जिससे मैटर रेप पे मैं छोटी सी बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा। आखिर रेप है क्या और क्राइम क्यों है? ये छोटा सा एक सब्जेक्ट आप इसको समझिएगा। रेप है क्या और क्राइम क्यों है? क्या होता है, स्त्री पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। ये छोटा सा बात है, इंजॉयमेंट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी को कंट्रोल्ड वे में करना, सब समाज के तरीके से करने के लिए ही मैरिज इंस्टीट्यूशन को डिजाइन किया गया है कि जब मैरिज इंस्टीट्यूशन में वही एक स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे और जो बच्चे होंगे वो एक हायरार्की बनी, माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ रिश्ते सब बनेंगे। सिर्फ हस्बैंड वाइफ को अलाउ किया गया है कि वो संबंध बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैरिज में हमारे पास सेक्शन वो डाइवोर्स के लिए ग्राउंड है कि अगर रिलेशन नहीं बनाते हैं तो क्रुएल्टी में गिना जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन नहीं बनाता है तो क्रुएल्टी में है।
और ये जो सिस्टम है पूरा इसलिए बना कि सब समाज बनाने के लिए ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाया गया है, और अगर ये किसी और के साथ होगा तो पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना, ये पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वरना हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, ये विवाह ही एक ऐसी संस्था है जिसने इंसान को इंसान बनाया है, रिश्ते बनाए हैं। अगर इसमें संबंध नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा? अब आपने क्या बोलने जा रहे हैं कि जो पति है और जो बाहर वाला है दोनों को एक ही कर दो। क्या पति और बाहर वाला एक हो सकते हैं? क्या ये संभव है समाज में? आपने इक्वल स्टेटस देने की कोशिश कर रहे हैं। पति की जिम्मेदारी है वो संबंध बनाएगा, संतानोत्पत्ति करेगा, वंश चलाएगा। इसको उस एंगल से मत देखा जाए। आप एक धार्मिक विषय, पवित्र विषय, सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखिए, तब आपको पति पत्नी का संबंध समझ में आएगा। अगर उसमें एक ही गंदगी माइंड से देखेंगे तो समाज चल ही नहीं सकता। कल को लोग शादियां करना बंद कर देंगे तो क्या बच्चे नहीं होंगे? अब उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा? कभी किसी ने कल्पना की है? नंबर 2 बात इस कानून में, अब ये बताइए इसका सबूत कौन देगा और कैसे देगा? हस्बैंड वाइफ के जो है वो संबंध बनाने के लिए किया ताकि संतान उत्पत्ति हो, बाकी जो कुछ दिए आप उससे कह रहे हैं अगर बनाओगे तो रेप लॉ आ जाएगा, मैरिटल रेप आ जाएगा। अब कानून सबूत कौन देगा? और दूसरी तरफ आइडेंटिटी को आपने खत्म कर दिया, लिविंग को प्रमोट कर रहे हैं कि बाहर वाले से संबंध बनाओ, वो ठीक है, लेकिन अगर पति के साथ बना लिया और उसकी इच्छा नहीं है, उसने कह दिया मेरी इच्छा नहीं थी, तो आप अपराधी हो। वो भी कौन से? छोटे मोटे नहीं, जैसे अमित जी ने बोला आप सेक्सुअल वायलेंस का बोल सकते थे कि ठीक है हमारी इच्छा की कोई जबरदस्ती किया, वो सेक्सुअल वायलेंस में, लेकिन रेप जैसा वर्ड नहीं हो सकता। रेप इसीलिए बनाया गया था कि पति पत्नी के अलावा कोई किसी के साथ संबंध है, मतलब कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ ना बना, ये बनाया गया था। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। अब पति के साथ नहीं बनेंगे, पड़ोसी के साथ बनाएंगे। हाँ, आइडेंटिटी में छूट है। अभी हम लोगों ने प्रतापगढ़ में बहुत गंदा केस देखा। पत्नी जो है, पति बाहर रहता था, पड़ोस की प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, वो बाहर संबंध बनाती थी, पति को पता चला, उसने मना किया, नहीं मानी, उसने थाने में भी गया, पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस कह रही भैया मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मेरा कानून नहीं है, आइडेंटिटी लॉ खत्म हो गया है। समाज के लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माने, वो दोनों संबंध बनते रहते थे। पंचायत बैठी है, उसको भी समझाने की कोशिश की, नहीं माने वो। तो पंचायत ने जब देखा कि ये सब नहीं माने, तो गांव में कुछ पंचायतें का रोल अच्छा होता है, कुछ खराब भी हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जैसा होता है कि तुम रोज मुंह काला कराती इसके साथ में, तो उन्होंने मुंह काला किया होता है। इस तरह से उन्होंने, इस बीच में वो आदमी जो है किसी तरह से बच के भाग गया। अब वो पहुंच गया थाने। अब आप सोचिए उसकी शिकायत पे, प्रेमी की शिकायत पे 3 थानों की पुलिस आई है और ना जाने कितने लोगों, 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है कि तुमने इस महिला को इस तरीके से क्यों रोका। यही पुलिस ना गांव पंचायत की, ना समाज की, ना पड़ोसी की, ना पति की शिकायत पे उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन जब समाज ने, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब उन्होंने मजबूरी में ये सब किया, कोई सुन नहीं रहा, कोई कानून, तो उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई 3-4 कानून की। आखिर हम क्या समाज में लेना चाहते हैं कि तुम जो बाहर वाले के साथ खूब करते रहो, जो भी करना हो करो, लेकिन पति के साथ करोगे तो मेडल लेके फंसा देगी। कानून आ जाएगा तब तो बिल्कुल भी आपको दे। सर माय बॉडी माय चॉइस। So I think सर इनफिडेलिटी पे क्या कहना चाहेंगे आप? इनफिडेलिटी जस्ट अ सेकंड ही गोट जी, आपने एक बात बताई, जो संसद है हमारी वही डिसाइड करता है, हमारा एक्ट बनता है। तो अब आप कह रहे हैं कि फीमेल्स ने सबसे ज्यादा अपोज किया उस लॉ को जिसमें फीमेल एमपी, फीमेल एमपी जो नेक्स्ट जो है वो रिजर्वेशन भी 33% आ रहा है फीमेल के लिए, तो उसमें तो हमारा एक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा मेन से। बिल्कुल नहीं बनेगा फिर तो। हालांकि जितने भी अभी तक तो हमारे पार्लियामेंट में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 14% है, लेकिन है ना 14-15%। लेकिन जब एक आदमी लॉ मेकर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो आदमी औरत से बाहर निकल के ये देखे कि हमारे देश के लिए क्या कानून बनने चाहिए। जितने भी कानून अभी तक बनाए गए वो सारे ज्यादातर मेल ही थे लॉ मेकर्स, और उन्होंने ये कानून बनाए हैं। और पहले लॉ कमीशन में जाता है, रिकमेंडेशन जाती है, लॉ कमीशन प्रपोज करता है और फिर कानून बनता है। तो हमारी
एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है आप कानून पूरे समाज के लिए बना रहे हैं, आप समाज के हर वर्ग के बारे में सोच के बनाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब ये आप जो 30% पहली बात तो ये जो रिजर्वेशन की बात है, देयर शुड नॉट बी जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होनी चाहिए मेरिट्स बेस्ड, चाहे औरत के पास मेरिट हो, चाहे ठीक है स्कूल लेवल पे आप रिजर्वेशन कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जब आप देश चलाने की बात कर रहे हैं, जिसके पास मेरिट्स होगा वो देश चलाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति या कोई इसलिए नहीं बनना चाहिए वो आदमी है या वो औरत है, वो कितना मेरिटियस है उसके बेसिस पे होना चाहिए कोई भी अपॉइंटमेंट हो। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं कि जो फेमिनिस्ट लॉबीज है उनकी कहीं ऐसे कानूनों की डिमांड रही है कि इस तरह के कानून बनाए जाएं, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि इस तरह के कानून हम आगे और भी देखेंगे। एक चीज में और हम लोग कवर करना भूल गए बिफोर वी क्लोज दिस, अभी 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारी उम्मीद थी, हम इतने सालों से हम लोग बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, मैं पर्सनली हम लोग दिल्ली में मिलते रहते हैं, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तब भी हम मिले थे, तब सुषमा स्वराज जी वगैरह जी से, नितिन गडकरी जी से, इन सब से हम लोग मिले थे, अभी भी जब वो पावर में है तब भी मिले हैं। हमारी उम्मीद थी कि जब ये नए कानून आएंगे तो कुछ इसमें चेक्स एंड बैलेंस दे देंगे, वो कुछ जेंडर न्यूट्रलिटी का क्लॉज या कुछ, मतलब एक मौका था करेक्शंस करने का, लेकिन ऐसी कोई करेक्शंस नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लॉबी, जो लॉबी की, क्योंकि जैसे ही करेक्शंस की बात होगी हम क्या मांग रहे हैं, हम कुछ आदमी के लिए कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आप जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए कानून, आदमी गलत है या औरत गलत है उसको सजा, गलत को सजा मिले, आदमी और औरत को नहीं मिले। हम क्या मांग रहे हैं कि जेंडर बेस्ड प्रिविलेजेस ना हो, कोई भी कानून जेंडर के हिसाब से ना डिसाइड करे कि परपेट्रेटर, तो हम लोग तो बहुत ही बैलेंस्ड और मतलब ट्रू मायने में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम कोई स्पेशल प्रिविलेज हम तो नहीं कह रहे हमारे लिए खास कानून बनाओ। कानून एक नया बन के आया है BNS 69, ये जो नए कानून आए हैं BNS 69 को मैं कवर करना चाहता था बिफोर वी कंप्लीट दिस। BNS 69 में अब क्या है, पहले होता था रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अब ये BNS 69 जो कानून आ रहा है ये आएगा, इसमें ये जो जिस तरीके से कानून बनाया गया है उसमें ये प्रोविजन है रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ जॉब। अब क्या है कि वर्क प्लेसेस पे एक आदमी और एक महिला के बीच में संबंध बनते हैं, आपसी रजामंदी से संबंध बनते हैं, वो जाके केस करा सकती है 69 में जाके कि इसने मुझे जॉब का झांसा दिया था, उस झांसे की वजह से मैंने अपना कंसेंट दिया, या इसने मुझे प्रमोशन का झांसा दिया था और उस प्रमोशन के आप कोई बच्चे तो नहीं है, अगर आपको झांसा दिया गया और आप उसके साथ संबंध बनाने चले गए और अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, that man can be behind bars for 10 years। अब ये केसेस सिर्फ मतलब जो रिलेशनशिप थे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में केस हो रहा है रेप का, अब ये होंगे ऑफिस स्पेसेस में, जगह जगह पे कहा जाएगा जॉब का झांसा दिया, प्रमोशन का झांसा दिया, या इसने मेरे से शादी करी, इसने मुझे बताया था कि ये एक सर्टेन जॉब करता है लेकिन ये तो कुछ और जॉब पे निकला, या इसने मुझे बताया था कि मैं इस कंपनी का CEO लेकिन ये तो मैनेजर निकला। झांसा कुछ भी हो सकता है, उसको डिफाइन नहीं किया गया। तो आप जब डिफाइन नहीं करोगे तो आप उसको एक लूज कैनन की तरह आपने छोड़ दिया इंटरप्रिटेशन के लिए, कोई भी झांसा करके ये वाला केस लगाया जाएगा, इसको रेप नहीं बोला जाएगा लेकिन इसमें 10 साल की सजा है, इसलिए इसमें पुलिस सीधा आपको आके अरेस्ट कर सकती है, कोई नोटिस नहीं देना जरूरी, क्योंकि वो सारे कानून जहाँ पे 7 साल तक की सजा है पुलिस वाले नोटिस देती है, इसमें 10 साल की सजा है, सीधा आएगी बंदे को अरेस्ट कर देगी, क्यों, आपने तो जॉब का झांसा दिया था। तो आप देखिए कि वर्क प्लेस कितना टॉक्सिक होने वाला है, काम करने की जगह कितनी टॉक्सिक होने वाली है, महिला और पुरुष के लिए एक साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। क्या ये हमारे वर्क कल्चर को इफेक्ट नहीं करेगा, क्या हमारे देश की उन्नति को इफेक्ट नहीं करेगा? आप ऐसे कानून बना रहे हैं जो हमारे देश की GDP को इफेक्ट करेंगे अल्टीमेटली। जब आपका वर्क कल्चर ऐसा होगा कि आदमी को डर होगा कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रही और मैंने इसको बोल दिया कि तू परफॉर्म नहीं कर रही है, अगर मैंने बोल दिया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अरे कहीं मेरे ऊपर केस ना हो जाए सेक्शन 69 का। आप यही कानून, आप ऐसा एक हथियार उनको दे रहे हैं जो इस तरह से दुरुपयोग होएगा ही होगा। ये एक नया कानून भी है
और देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में शायद इसके अगेंस्ट कोई पिटिशंस वगैरह लगे, वी डोंट नो दैट, हम भी प्लान कर रहे हैं, बट इस तरह के कानून आ रहे हैं और ये सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है, बता रहा था अभी। हाँ, बिल्कुल ले लीजिए। सर ये जो ड्राफ्टिंग जो तैयार हुई है मैरिटल ऑफ रेप की, क्या इसकी ड्राफ्टिंग में वही लोग हैं लॉ मेकर्स, वो भी एक मैन के बारे में, मेंटिलिटी के बारे में सोचे, नहीं, मैं आपको उन्होंने बताता जो हूं। अमेंडमेंट दी होगी? तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में हिस्ट्री बताता हूँ। 2014 में एक जजमेंट आई थी अरनेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। उसमें क्या था कि जो झूठे जो ये केसेस हो रहे थे दहेज के, उसमें पहले बहुत अरेस्टिंग होती थी, आते थे अरेस्ट करके चले जाते थे, माँ बाप को, ऐसे केसेस ने पड़ोसियों को भी अरेस्ट किया हुआ है, जबकि कानून पड़ोसियों के लिए नहीं बना हुआ। मेरी एक बार जस्टिस डीगरा से डिस्कशन होती कहते हैं कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बस आती थी अरेस्ट होने के लिए, जिस चीज का नाम लगा दिया अरेस्टिंग। तो इसमें कोर्ट ने देखा कि जो बूढ़े माँ बाप हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, नंद हैं, सास हैं, जेठानियां हैं, उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। 48 हज़ार औरतों को एक साल में अरेस्ट हो रहे थे 498 में, ये जजमेंट आई थी। इस जजमेंट के बाद अरेस्ट कम हो गए। इसमें ये कहा गया था कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप पार्टी को बुलाएंगे, ये सब करेंगे। जब ये अरेस्ट कम हुए तो जो फेमिनिस्ट लॉबी है, देखिए ये अरेस्ट को यूज किया जाता था, भाई पैसे दे दो, शादी नहीं चल रही, पैसे दे दो नहीं तो अरेस्ट करा देंगे। अब ये अरेस्ट का डर खत्म हो गया, तब ये पैदा हुआ मैरिटल रेप का सोच कि एक ऐसा कानून लाया जाए जहाँ पे हस्बैंड क्या उसकी पूरी फैमिली को 1 मिनट में अरेस्ट कराया जा सके और कहा जा सके पैसा दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, मकान हमारे नाम कर दो, नहीं तो आप अंदर हो जाओगे। तो एक PIL लगी थी 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में, पहले वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गई थी, फिर दोबारा 2016 में लगाई गई थी। इसमें काफी सारी लेफ्टिस्ट लॉबीज हैं, काफी सारी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फॉरेन फंडिंग आती है, बाहर से पैसा आता है, बड़े बड़े वकील होते हैं, जिन्होंने ये PIL लगाई हाई कोर्ट में और कहा कि ये कानून लेकर आओ जिसमें वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर भी रेप का केस लगाया जाए। तब हम कोर्ट में गए और हमने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी, आपको दूसरा पहलू भी इसका देखना पड़ेगा। हम इस देश के आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक हेल्पलाइन रन कर रहे हैं, ये आदमियों की प्रॉब्लम है। तो कोर्ट ने हमारी अर्जी को, हमारी जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट किया था और तब से हम फाइट कर रहे हैं हाई कोर्ट में। इसी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इंटरवेंशन किया था, जो नतीजा आया था वो 50-50 आया था, ठीक है। एक जज ने कहा था कि नहीं वो पक्ष ठीक है, एक जज ने कहा था हम लोग भी जो बात कह रहे हैं वो सही है, इसलिए हाई कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं हो पाया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जो गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उनका यही कहना है कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना जो है वो लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट में ये कानून बनना चाहिए, ये यूनियन ऑफ इंडिया बोल रही है। हम भी यही बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन हम साथ में ये भी बोल रहे हैं इसमें ये कमियां हैं। अगर ये पार्लियामेंट में भी जाएगा तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारे एस्पेक्ट्स को देखकर ही कानून बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारी सोसाइटी के लिए। ये हमारा स्टैंड है। हमारी जितनी भी पिटीशंस हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप कोई भी जाके देख सकता है कि हमने क्या स्टैंड लिया है, बहुत ही बैलेंस स्टैंड लिया है। अब हमारे साथ काफी सारे बड़े बड़े वकील भी जुड़ गए हैं और जो हमारे बात को रेजोनेट करते हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा दीपक है एक वकील, एक और वकील हैं जो अभी यहाँ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल हैं RK कपूर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अब हमारे इस चीज़ को समझ रहे हैं। हालांकि क्योंकि जब ये कानून, जब इसकी डेट आने लगती है, इतना ज़्यादा मीडिया में माहौल बन जाता है कि केसेस आने लग जाएंगे, कवरेज होने लग जाएगी कि ये कानून आना चाहिए। सोसाइटी को आपको आपकी जिम्मेवारी है, इसका दूसरा पहलू भी तो बताइए कि ये कानून आएगा तो इसके अंदर क्या है। तो वो काम हम कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने का और फाइट करने का कोर्ट। अब इसको यहाँ विराम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम लोग अवेलेबल हैं, कभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप। एक NRI मैनेजर्स को लेके कोई लॉ है, बिकॉज यहाँ पे अगेन बहुत सारे NRI मैनेजर्स के केस हैं, लड़के शादी करके आते नहीं वापस और लड़की वेट करती रह जाती है इन टर्म्स ऑफ वीजा और गोइंग बैक एंड सेटलिंग विद द हस्बैंड। वहाँ पे मजबूरन स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कि किसी तरीके से फैमिली के साथ रिकंसाइल किया जाए, बिकॉज शादी शुरू होने से पहले खत्म